connected with God, then why should you have any fear of anything? But when we say don't have fear, another extreme comes up. We don't have fear, we can do what we like, we can perform everything ourselves, we need not tell anyone. You have to tell God whatever you are doing. You have to take permission, you have to inform in his darbar, in his court, that sir, we are thinking of doing such and such. But you think you are God? You are not. And that's why the another part of non-fear is this kind of an arbitrary behavior, which is very dangerous for Sahaja Yoga, for yourself, or for everybody else. The second fear, I have is that if I tell you anything, 99% of you understand is for your benevolence, is for your good. But there is 1% of people who can just react because they have too much ego and they won't take it because they don't think of their own benevolence. They don't understand that if I am telling them anything, it is just to give them completeness, totality. But on the contrary, they take a very wrong attitude. This is another nonsense. So now one has to develop a kind of a indifference to this kind of people who unnecessarily go to the other limit of their own destruction and don't want to see what is the point in everything that I am telling. Only I can tell you, who else? I have to tell you what's wrong with you, what you have done wrong, and then you must change it. This is another style of reaction one gets. Means they are not interested in their own benevolence. They are not interested in the benevolence of their children. They are not interested in the benevolence of their country or the whole world. Now why have you come to Sahaja Yoga? Just ask one question. Of course, for you to ascend. But ascend for what? Supposing we bring one tube light. For what? We have to take the tube light. For what? We have to put the light. But this tube light doesn't give light, nothing of the kind. So what's the use of having this tube light? In the same way, what's the use of coming to Sahaja Yoga if you cannot become the light of the divine? So all of you, each one of you, is not at all a small person, no one. But you don't realize what you are. Still have those funny conditionings by which you think you are no good. All of you can come up and see so many people. If they take to total benevolence within themselves, it will manifest itself outside. Absolutely is a fact. Then the attention is very important. The attention should be on your own perfection and on your total benevolence. This is also another point people miss, that they start finding faults with others instead of finding faults with themselves. As a result, if you look at others, what will you get out of it? I just don't understand. If somebody is wrong, he's doing something evil, he's bad, even if you put attention to him, what will you do about it? But if you have something wrong, you have every right, you have every control, and you can correct yourself. I said, this is specially Indian quality, is to find faults with others. They'll never see that what's wrong with us. All the time the attention is involved in finding with faults with others. Then how can we improve? On the contrary, if you start seeing faults, you get faulty much more. It's a copycat nature of human beings. They see somebody doing like this, oh mother, he is a Sahaja Yogi, he does like this, so what's the harm if I do? But
Who says he is a Sahajogi? So Sahajogi is not a brand, it's not a certificate, it's not a kind of a organization, but it is your own status that you have achieved. Anybody can say I am a Sahajogi after all. I cannot stop him from saying I am not such a Sahajogi. Even I have seen some mad people, they are Sahajogis. For years together they are mad, but they are Sahajogis. But you have to see for yourself, am I Sahajogi or not, before certifying yourself. Why don't you find out? But despite that, I must say it's such a satisfaction. I never expected that so many people will get their realization to be never. I mean, I knew that it was Hamas modus operandi I have developed, but I never expected. But it has happened. And even now I have to expect that all of you will achieve the highest positions, the Paramapada, as I said, like the North Pole or like the Meru, absolutely Atala, which cannot be disturbed. So that's my hope, and I'm sure we'll all comply with it. आता मराठीत बोललं पाहिजे, कारण पुष्कळ लोकांना इंग्लिश भाषा समजत नाही. काय हरकत नाही, इंग्लिश भाषेत काही राम नाही आहे. मराठी भाषेसारखी भाषा नाही. आणि परत आत्म्याचं ज्ञान घ्यायला मराठी भाषा. आणि इतकं संत साधूंनी ते कार्य केलंय, नाथपंथीयांचंच आम्ही कार्य करतो आहे कुंडलिनीचं. पण सांगायचं असतं की मराठी भाषा जरी फार उच्च दर्जाची असली आणि महाराष्ट्रात सर्व विश्वाची कुंडलिनी असून सुद्धा महाराष्ट्रीयन लोकांचं डोकं मात्र आजकाल उलटं बसलेलं आहे. ते कशाने ते मला माहिती. जे पॉलिटिक्स मध्ये चाललेलं आहे तेच आपल्या आज घरोघर सहयोगामध्ये चाललेलं आहे. त्याचा पाय त्यांनी ओढायचा, त्याचा पाय त्यांनी ओढायचा, म्हणजे आहे तरी काय मला समजत. अहो, जर तुमच्यामध्ये सामूहिकता आली नाही, समष्टी आली नाही, तर या वेष्टी स्वरूपासाठी का मी एवढं दिवस इथे मेहनत केली. आणि संत साधूंनी हे सांगितलं का, इथपर्यंत सांगितली, त्याची सोयरीक होती. अहो, त्या ज्ञानेश्वरांनी एवढं कशाला सांगितलं, ते कोणासाठी सांगितलंय मला समजत नाही. परदेशातल्या लोकांसाठी सांगितलेलं दिसतं, कारण इथे कोणावर परिणामच होत नाही त्याचा. तुमचे सोरी कोण, ते सहयोगी. पण ह्याचं हे चुकलं नाही, त्याचं ते चुकलं नाही. एवढी मोठमोठाली मला पत्र पाठवतात. मला ऐकून बरं वाटेल का? देवीला प्रसन्न केलं पाहिजे की तिला अशा गोष्टी लिहून पाठवलं पाहिजे. आता प्रत्येक वेळा सांगायचं म्हणजे सुद्धा मला वाटतं की मी कोणाशी बोलते. अहो, तुम्ही संत साधू, तुम्हाला साधू केलं, मी संत केलं, तुम्हाला इतक्या उच्च दशेला आणलं, ध्रुवासारखं तुम्हाला नेऊन बसवलं त्या आढळपतावर, आणि तुम्ही आता कुठे इथे पडल्या आहात मला समजत झाला काय म्हणावं. मराठी भाषा इतकी सोज्वळ, इतकी प्रखर आणि आत्मानुभूतीला अत्यंत उत्तम अशी भाषा असताना सुद्धा मराठी ऐकणाऱ्यांना ते पाहिजे ना. त्यांच्या जर डोक्यात नाही घुसलं तर सांगून तरी काय उपयोगाचं. दुसरीकडे अनंत प्रकार केले लोकांनी कुंडलिनीचे. अब इनको हिंदी में बता रही हूँ. मराठी लोगों को सच मानना चाहिए कि इनकी भाषा बहुत ही बढ़िया भाषा है आत्मानुभूति के लिए, इसमें कोई शक नहीं. इससे ज्यादा किसी भी भाषा में स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है. और इसमें गणेश जी का आदर करने की वजह से लोग जो है चरित्रवान वैसे दिखा जाता है. उनकी आंखें इधर उधर घूमती नहीं. नॉर्थ इंडिया में मुसलमानों का राज्य आने से वो पर्दा के सिस्टम से कोई भी जर चारा हो तो उसकी ओर देखने की वहां प्रथा है. सब लोग, मैं तो पहले शुरू में सोची थी लोग करते क्या है, वो जो भी हो गया. अब सहयोग में आने के बाद मराठी भाषा में जो आत्मानुभूति पर अनेक लेख और अनेक चीजें लिखी हैं कमाल के, उसका एक असर इनके चरित्र पे आया है कि इनको औरतों का चक्कर नहीं, उसमें नहीं फंसते. इतना महाराष्ट्र है, हमारे जो ऐसे औरत चक्कर वाले थे वो गए हैं सब दिल्ली में बैठे. पर यहाँ पर जो है वो लोगों में एक विशेषता इनका चरित्र है. और नॉर्थ इंडिया में मैं तो हैरान हूँ कि जिन्होंने दत्तात्रेय कौन जाना नहीं,
उनमें इतनी सजगता कैसे? कोई झगड़ा नहीं दिखाई देता, कोई वहां पर कोई परेशानी नहीं। इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ कि सब लोग हैरान हो गए। तर मराठी सांगायचं म्हणजे इकडे फॉरेनचे लोक आले म्हणजे याच्याकडे पैसे कसे काढायचे याच्याकडे फार लक्ष, तिकडे काय तसं करत नाही। और फिर ये सब करके उन लोगों ने दिखा दिया कि किसी भी गर्त में पड़े थे उससे एकदम उठ के कमल जैसे हो गए, ये उन्होंने दिखा दिया। अब महाराष्ट्र में क्योंकि ये सब चीजें हैं और सब लिख गया है, यहाँ पे साधु संतों ने इतनी मेहनत करी, तो जहां जितनी मेहनत होती है मेरे ख्याल से वहीं गड़बड़ हो जाती है। इनको सब मालूम है, ये सब मालूम होते हुए भी इतनी सारी गड़बड़ कर डाली। इससे अच्छा तो ये है कि कुछ भी नहीं जानो, सिर्फ एक बार जान लो कि आपसी प्रेम यही सहयोग का सबसे बड़ा मुख्य मंत्र है, तो बड़ा काम हो जाएगा। नहीं तो मंत्र पे मंत्र इनसे सुन लीजिए, सब कुछ सुन लीजिए, तो सारी दुनिया भर की चीज मालूम है, और जैसे एक दूसरे को देखा तो गालियां बकना शुरू। अब अनुभव से ये सिद्ध हो गया कि नॉर्थ इंडिया में लोगों ने इस तरह से सहयोग लिया है, एक कमाल की चीज, बहुत कमाल की। और मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में भी ये चीज हो जाए तो मेरे लिए और क्या चाहिए। इसी छोटे से हिस्से में हिंदुस्तान के न जाने कितने साधु संत हो गए, और उन साधु संतों को सारे हिंदुस्तान में लोगों ने माना। नहीं, ऊंची ऊंची बातें लिख गए हैं कि बस देखते बनता। और उन लोग की महिमा बिल्कुल वर्णन नहीं करी जाती। अब यहाँ की जो संस्कृति है उसमें वो चीज काफी जमी हुई है, रची हुई है, पर सहयोग में नहीं उतर पा रहे। सहयोग में बात है, सहयोग की संस्कृति लेनी चाहिए, और सहयोग की संस्कृति में सबसे बड़ी चीज है आपसी प्यार। एक दूसरे से हम लोगों को प्यार महसूस नहीं होता तो फिर हम सहयोगी हैं ये नहीं। एक सहयोगी जब तक दूसरे सहयोगी के प्रति प्रेम प्रदर्शित नहीं कर सकता तो हम लोग सहयोगी हो ही नहीं सकते। अगर हम एक दूसरे की गर्दन काटने पर लगे हुए हैं, हम सहयोगी हो नहीं सकते किसी भी तरह से। दूसरे की बुराई आपको देखने की जरूरत ही नहीं, उसकी अच्छाई को देख करके उसकी अच्छाई का वर्णन करिए, वो भी अच्छा हो जाएगा। मैं तो बहुत बार ऐसा करती, मुझे कोई आकर जब बता जाए ये आदमी ऐसा, इसने ऐसी खराबी कर दी, ये कर दी, अरे वो तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था, तुम क्या उसकी बुराई कर रहे? अच्छा क्या कहा माँ, इतनी बातें कही, मैं तुमसे क्या बताऊं, तुम जाके देखो तो सही। तो आदमी जाकर के उसके गले पड़ जाता। तो इसका मतलब है सारा झूठ है। अब गहनता से बात को सोचो कि हम किस इसमें पैदा हुए। हम उस जमाने में पैदा हुए हैं जाके एक बड़ा महत् कार्य हो रहा है, बहुत बड़ा, और इसके बारे में बताया गया है कि ये महत् कार्य होगा। और वो महत् कार्य करते वक्त जब हम पैदा हुए हैं और उसमें हम कार्यान्वित और उसके हम कार्यकर्ता बन गए, और हमारे ऊपर जब उसका बोझा आ गया तो हमें क्या करना चाहिए? अगर 4 आदमी एक टेबल ही उठा रहे हैं, उसमें से एक अगर कच्चा पड़ जाए तो टेबल 10 से नीचे गिर जाए। या किसी बड़े भारी शिप में अगर एक छोटा सा छेद भी हो जाए तो शिप डूब सकता है, क्योंकि सब जुटा हुआ मामला है। क्योंकि आप सब जुटे हुए हैं, आप में से एक भी आदमी अगर गलत चला जाता है तो बड़ा नुकसान सहयोग हो जाता है। अब उसमें जो बातें आ जाती हैं वो समझने की यह है कि हमें एक नम्रता आनी चाहिए। ईसा मसीह ने कहा है कि मीक इन हार्ट विल इनहेरिट अर्थ।